Okay, so let's start with apiculture. Apiculture, you know कि honey bees की rearing and why honey bees are important. अच्छा honey तो एक important चीज है ही that we obtain from honey bees. What else do we obtain from honey bees? Apart from honey bee, मतलब apart from honey. Okay, wax is there. हाँ, pollination करते हैं. The royal jelly is also obtained from them. Yes, so these are the other products that are obtained from them, right? Venom भी लेते हैं. Okay, and also they play a major role in ecological balance. तो ecological balance पूरा maintain करने के लिए भी honey bees are important, right? Okay, so yeah, एपिकल्चर में पढ़ते हैं, पर उससे पहले we'll discuss what do you know about honey bees. What all do you know about honey bees? तो एक एक करके एक एक पॉइंट सब बताएंगे. Honey bee is a social insect which live in a society. हाँ, social insect which live in a society. कैसी सोसाइटी होती है उनकी? उसमें वर्कर भी होती है, क्वीन होती है, उसके बाद ड्रोन होता है, उसके बाद सबके अपने अपने काम अलग अलग बटे हुए होते हैं. Very good. Avina? Okay, that's why we were missing you in the class. Which is a very good thing. Okay, so आप लोग भी और लोग भी ट्राई कर सकते हो. अविनाश की तरह बोलने का. स्नेहाक्षु भी he also gives answer. धर्मेंद्र, ज्ञानेंद्र, they also give the answer. But apart from them, apart from these people, I haven't heard others speaking up. तो और लोग भी ट्राई करना, ठीक है? Okay, bee dance. कार्डमोन फ्रिश ने बताया था Hymenoptera is the order. 3 कास्ट होती हैं. Okay, they are social insects. Yes. So honey bees जो होती हैं, तो एक मेजर चीज जो उनके बारे में, that is they are social insect. What does social insect means? That means they live in a kind of like society जिसमें particular work is given to a particular type of like caste. ठीक है? तो क्या क्या इसमें कास्ट होती हैं? One major is the one major जो कि और सारे कास्ट को जन्म देती है, that is the queen. Okay, and queen, how do you obtain the queen? From the fertilized egg. Okay, so both type of things happen here. एक तो unfertilized egg से भी बनता है. So unfertilized जो egg होता है, that forms what? Drones. Drones are the male counterparts. ठीक है? Fertilized egg से क्या बन रही है? Queen बन रही है, और क्या बन रहे हैं? Workers बन रहे हैं. These are the female. Right? Which means यहाँ पर fertilization होके भी नया हमारा कास्ट बन रही है. Unfertilized egg से भी बन रही है. Unfertilized egg से जब बन रही है, what is it called? It is called as parthenogenesis. Right? जैसे parthenocarpy पढ़ा था हमने. तो in case of your plants there is parthenocarpy. In case of your animals there is parthenogenesis. ठीक है? So parthenogenesis happening here. अच्छा, apart from this और कौन से इंसेक्ट है जिसमें parthenogenesis होता है? Anyone knows? Isopteryx किसमें होता है? एक I heard aphids में. Yes, aphids में होता है. Aphids में there is parthenogenesis C. Okay. And here in case of drones it is C. Now drones जो है male counterparts आते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारे male flowers होते हैं, they have no other work than except them giving the male gametes. So same here is the case. Drones का भी एक ही काम है कि like fertilization के लिए male gamete देना. Otherwise they don't have any work. तो they live इसीलिए कि हम जाकर के queen को fertilize करेंगे and that's it. So they take a nuptial like flight. It is called nuptial flight. ठीक है? Nuptial flight it is called, जहाँ पर कि they like mate with the queen and after that what happens? These drones are thrown out of the hive. कि अब आपका कुछ काम नहीं है. So they are thrown out. हाँ मतलब ultimately they'll die ना when they are thrown out of the hive. तो खाने को मिलेगा नहीं कुछ, तो they'll die ultimately. ठीक है? So males का सिर्फ इतना सा काम होता है. Whereas females are very like hard working here. तो एक तो बनती हैं पहले, मतलब जो फर्टिलाइज एग हुआ, फर्टिलाइज एग से जब निकला बाहर को मैगट टाइप, इसमें जब निकलता है तो व्हाट हैपेंस इज कुछ एक जो होता है उसको फीड करवाते हैं रॉयल जेली एंड द अदर वंस दे आर नॉट फेड विद द रॉयल जेली. ठीक है? तो रॉयल जेली जिसको फीड करवाते हैं दैट बिकम्स व्हाट? क्वीन. ठीक है? मैं एक क्वेश्चन. हां मैम, से फर्टिलाइज एग से क्वीन भी हुई है और वर्कर्स, तो वर्कर्स एग ले करने की कैपेसिटी नहीं होती है. वही तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. दे आर नॉट फेड विद रॉयल जेली. रॉयल जेली से जब फीड करवाते हैं देन द क्वीन बिकम्स अ क्वीन. इट गेट्स दैट कैपेसिटी ऑफ एग लेइंग की कैपेसिटी उनमें आती है. अदरवाइज जो फीमेल्स और बनती है वो एग लेइंग नहीं कर पाते. ठीक है? वर्कर्स दे डोंट हैव, मतलब उनको एग लेइंग नहीं कर पाते, बल्कि वर्कर्स आर मेड फॉर वर्किंग. सो फॉर इनिशियल सम टाइम दे विल बी वर्किंग इन द हाइव. ठीक है? जो यंग वंस है उनको फीड करवाना और क्वीन को रॉयल जेली फीड करवाना, वो वाला सारा उनका काम होता है. और फिर बाद में क्या करते हैं? फॉरेजिंग वाला काम होता है. तो काम होता है ना, इनसाइड वर्क होता है, जो कि हाफ ऑफ लाइफ इनसाइड चलता है, हाफ आउटसाइड ऑफ हाइव चलता है. yes that is what happens. ठीक है? Okay, Sneha actually is saying this theory is old now. SDL gene is in trend. What does SDL gene theory say? Is Sneha Akshu? Sneha Akshu, are you there? Yes, he's busy somewhere, I guess. Okay, so when he'll be like, ready to speak up, we'll ask. Yes, ma'am. मैं गाइड का फोन आ गया. हाँ, कोई बात नहीं. SDL gene की theory बता रहे थे. मैम एग्जैक्ट तो पता नहीं, मतलब वो कोई स्पेसिफाई लोकस होता है
उसमें वो जीन का प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर हिसाब से ठीक होता है, मतलब वो फीमेल क्या होगा, मतलब क्वीन होगा या फिर वर्कर होगा। ओके ओके, तो हैज दिस थ्योरी बीन एस्टैब्लिश्ड Yes, या ma'am. फिर अभी अभी रिसर्च में है? ये तो नहीं पता, मतलब ये मैंने 12th में पढ़ा था, तो तब मेरा जो सर था वो पढ़ा था। Okay. लेकिन अभी भी देखता हूँ कि मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी यही थ्योरी अभी भी चलता है, मतलब रॉयल जेनेटिक। वही द प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन इज दैट ना कि हमारी बुक्स बहुत ज्यादा अपडेटेड रहती नहीं है एग्रीकल्चर में खासकर। एग्रीकल्चर में खासकर, और जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाते भी हैं वो भी पुरानी वाली बुक्स को ही रेफर करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई साइंटिफिक नेम क्या है, वो नया साइंटिफिक नेम आ गया है रिसर्च पेपर्स वगैरह में भी, बट स्टिल दीस एग्जामिनर्स विल टेक पुराना वाला साइंटिफिक नेम ही, सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? यस मैम। ओके, सो अब इसी के लिए तो रॉयल जेली वाली थ्योरी ही चल रही है। यस मैम। ठीक है, सो या क्वीन बनती है एक, एंड दैट क्वीन आल्सो सीक्रेट्स अ क्वीन सब्सटेंस। ठीक है, सो क्वीन क्यों कैसे क्वीन बनी रहेगी? क्योंकि ये क्वीन सब्सटेंस एक तरह का केमिकल रिलीज करती है, ड्यू टू विच द होल ऑफ द हाइव, जो उनका पूरा हाइव है जिसमें वर्कर्स हैं और ड्रोन्स हैं, वो सारा एक साथ रहे ताकि, ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेट मतलब पूरा सोसाइटी बना करके ये क्वीन सब्सटेंस रिलीज करती है। एज सून एज इट स्टॉप्स मेकिंग द क्वीन सब्सटेंस, और देयर इज लाइक यू नो इफ द क्वीन इज टू ओल्ड और क्वीन सब्सटेंस वो नहीं बना पाती है, तो उसके बाद क्या होता है? अ न्यू क्वीन इज फॉर्म। ठीक है, सो देन न्यू क्वीन हैज टू बी लाइक मेड। ठीक है, उसे सुपरसीडर कहते हैं, राइट? ओके, सो या स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एपिकल्चर, दैट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा बहुत। सो एपिकल्चर इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ द बीज कॉलोनी, बी कॉलोनी का पूरा मैनेजमेंट। अब क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट? वाई आर वी गोइंग फॉर एपिकल्चर? कल्चर हमें करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज वी वांट हनी, वी वांट द bee का wax, and we want the royal jelly that is like sold in the market, that is beneficial for us, and that's why we go for culturing these honey bees. ठीक है, और also you know honey क्या है, बहुत high rate पे बिकता है, तो it's a good source of income. That's why apiculture is done. It's basically a scientific method of rearing the honey bees, right? Now initially जो था उस टाइम पे क्या करते थे? जंगलों में कहीं हनी बीज होती थी, and from there people used to find out, and then वो क्या करते थे? मतलब वहां से जंगलों से लेके आते थे पूरा हनी, and then used to sell it. But then over the time what happened is people, as you know, human beings are very selfish and they want to like rear everything. Like they'll go to any extent to do like to have the income. तो फिर what did they start? They start rearing it. और rearing के लिए उन्होंने क्या बनाया? पूरा bee का आप बोल सकते हो एक hive टाइप का artificial hive was made for bees. ठीक है, it's called the frame. Okay, so bee hive frame it is called, and the first person to make that was Langsworth. ठीक है, so Langsworth ने सबसे पहले बनाया था, and from there the rearing started. Okay, so apiary एक term होता है that is related to your honey bee का production. It refers to a place where beehives are kept. These all of the beehives are kept at one place. And कैसे इसको रखते हैं? These are like located near any of your जो भी आपका field होगा, जहाँ पर ऐसे plants हम grow कर रहे हैं जिनमें flowering हो रही है या फिर flowering होने वाली है, near those places these beehives are kept. And अब तो क्या करते हैं? Because so that these bees don't have to like forage very long far away places, तो ये क्या करते हैं? ये beehives को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देते हैं. In one season they'll keep it in one field, and in the other season they'll keep it in another field. Then बीच में एक season ऐसा भी आता है, especially during your समर। summer. क्या होता है summer? गर्मी में ज़्यादा फूड मिल नहीं पाता हम लोगों को, और टेम्परेचर के कारण वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ कॉलेज में एक सीनियर सर करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस रॉयल हनी नाम से, तो वो करते हैं For foraging. So that is called as dearth period. क्या होता है ये? Dearth period कहते हैं इसे. When honeybees are not able to collect their nectar, and that's why at this time, because we are rearing the honeybees, so at this time sewage solution is generally provided to the honeybees so that they cannot have the nectar, तो वो क्या करेंगे? sewage solution को ही consume कर. ठीक है, just a second, just a second. ओके, सो उस टाइम पे क्या करते हैं ये हनी बीज जो होती है वो जो सोलर सॉल्यूशन है उसको ही कंज्यूम करते हैं एट दैट टाइम. ठीक है, सो बी कीपिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
लो मीटिंग किधर हो रहा है? पता नहीं। Sorry for the interruption in between. So yeah, so we were talking about the beekeeping, right? तो एपिकल्चर की अगर बात है तो फिर वी हैव टू लाइक रियर द हनीबीज, राइट? सो हनीबीज की कौन कौन सी स्पीशीज? वैसे तो देयर आर मेनी स्पीशीज बट 4 मेजर स्पीशीज दैट आर लाइक रियर्ड इन इंडिया फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी, बट कमर्शियल पर्पस के लिए हम मेजरली 4 को करते हैं। ओके ओके, सो बी कीपिंग इन इंडिया, वी सी द हिस्ट्री। तो इन इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू कीप द बीज इन मूवेबल फ्रेम हाइव्स, ठीक है, दिस वाज मेड इन 1882 इन बंगाल, सबसे पहले करा था, एंड देन इट स्टार्ट लाइक धीरे धीरे देन इट वाज लाइक गॉन टू लाइक पंजाब वाला एरिया। तो ये थोड़ा हिस्ट्री है, लाइक यू कैन रीड, वैसे इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है जनरली, ठीक है। चलो फिर नहीं करना। ओके, देन कमिंग टू योर स्पीशीज ऑफ हनी बीज। तो अगर हम हनी बीज की स्पीशीज देखें तो मेजरली आपकी 4 जो मैंने बताया था, दोज आर फॉर कमर्शियल पर्पस दैट आर बीन, मतलब कमर्शियली जिनसे हनी कलेक्ट हो सकता है। अदरवाइज देयर आर अदर स्टिंगलेस बीज एज वेल, जो कि like stingless है, तो they do not produce enough of honey, and there is also one new honey bee species that we have found, that is Indian black honey bee, that is Apis carinjodium। ठीक है, ये क्या है, नया स्पीशीज डिस्कवर की गई है। इनमें से क्या है, we have the Indian bee Apis cerana indica, then we have the rock bee, this is found in wild Apis dorsata। ठीक है, वाइल्ड में ये जनरली फाइंड की जाती है, एंड इट्स लाइक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा साइज जो होता है हनी बीज का, दैट इज ऑफ Apis dorsata, and also produces good amount of honey, right? Then you have the European honey bee, जो कि हम यूरोप से we had like brought this species. Why was this species like brought from Europe? Because it's like domesticated, this can be domesticated, क्योंकि हमारी जो रॉक बी होती है that can't be domesticated, it's wild, it जो इसके बड़े बड़े हाइव्स बनते हैं, those you will see in the wild areas, wild जंगल वाला एरिया, फॉरेस्ट वाला एरियाज है, वहाँ पर जनरली देखने को मिलता है। So and also it is very ferocious, रॉक बी जो होती है, so ferocious होती है, जिसकी वजह से they can attack human beings, so that's why they can't be reared, but their like honey can be collected by special people। ठीक है, other than that European bee that we had introduced in India, this is काफी docile kind of you can say honey bee that will docile होती है, साथ ही साथ प्रोडक्शन अच्छा देती है यूरोपियन बी। ठीक है, so this is the Apis mellifera। then you have little bee Apis florea। Apis florea जो है that is like this also produces honey but in a small amount, the small amount होता है, like बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करते हैं, but Apis florea is also one of the little bee that we have। ठीक है, then we have Indian black honey bee, this was like found last year it was discovered, okay, and we have the damer bee or the stingless bee that does not have a sting, okay, so not harmful at all। Apis dorsata की बात करते हैं सबसे पहले। so Apis dorsata it constructs a single comb in open में जनरली आपने देखा होगा जो बड़ी बहुत सारी बड़ी सी बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी और बड़े पेड़, बहुत ऊंची पानी की टंकी, या फिर तो जंगलों में, चट्टानों में, जंगलों में you'll see there बहुत बड़ा सा इनका क्या रहता है, कोम्ब रहता है। You can imagine 6 feet का comb, it means almost of your height, right? 6 feet long and 3 feet deep it is, and like height में फिर बहुत ज़्यादा beads होंगे उनके साथ। ठीक है, and they shift from one place to another, they keep on shifting, they are very ferocious। अगर गलती से आप लोग कभी यहाँ चले गए कि किसी ने एक पत्थर भी मार दिया तो सारी beads फिर पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, and they produce around 37 kg of honey, which is a good amount। ठीक है, then you have महुआ बारगार trees, I saw होता था बचपन में यही करते थे, हाइट पे पत्थर मार के भाग जाते थे। तो किसी को काटा है ऐसे, कोई हनी बी ने अटैक करा है किसी पे? हाँ मैम। कैसा लगा, कितना इन्फ्लेमेशन आया उसमें? एक आंख के पास काटा तो एक आंख मोटी हो गई थी, छोटी हो गई थी। ओके, अच्छा, we have many people in the class वो छोटी नहीं होती, वो सही था। वो बचपन में आदत होती है चोरी करने। हाथ में काटा था, अब वैसे भी काटता है। ठीक है, अच्छा, जो हनी बी मतलब काटती है, इज दिस एसिडिक और बेसिक? वेनम होता है तो एसिडिक ही होगी। एसिडिक होता है, और जो वास्प काटता है दैट इज बेसिक। तो एसिडिक पे फिर हम क्या लगाएंगे? अगर एसिडिक आयरन रगड़वा से चूना भी लगाते हैं हम, चूना लगा सकते हैं बिकॉज़ दैट वुड बी अल्कलाइन इन नेचर। खाने वाला सोडा लगा दें, खाने वाला सोडा भी इट विल बी अल्कलाइन, तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए विल बी यूजिंग अल्कलाइन ओवर दैट। सोप से, हाँ, सोप भी लगा सकते हो। तो सूझ तो जाता ही है वो, कितना ही बेसिक लगा लो आप। हाँ, इन्फ्लेमेशन तो होगा बट फिर उसमें थोड़ा पेन कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा, मतलब इरिटेशन थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दोगे। ठीक है, बट इंस्टेंट इफेक्ट तो होगा ही ना, द बॉडी में रिएक्शन तो होगा ही। ठीक है, एंड इन केस इफ देयर इज वास्प, तो वो बेसिक स्टिंग उसका होता है, तो वहाँ पर हम एसिडिक लगा सकते हैं। उसके केस में विनेगर लगा सकते हो या फिर नींबू लगा सकते हो, ऐसी चीज़ें। ठीक है, ओके,
सो मतलब एवरीबडी हैज सीन दिस एपिस डॉर्साटा कहीं ना कहीं, ठीक है. देन वी हैव एपिस फ्लोरिया. एपिस फ्लोरिया क्या होता है, थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर्ड टू डॉर्साटा. द साइज इज वेरी स्मॉल. So they also construct a comb in open of the size of a palm in branches of bushes, but इनका जो honey का production होता है that is very only half kg, which is very quickly काट दिया जाता है. Then we have Apis serena indica. इनका जो comb बनता है that is like this. मतलब एक तो होता है जैसे थोड़ा cylindrical form में, कोन वाली shape में Apis dorsata का, लेकिन Apis serena indica का देखोगे आप ऐसे लंबे से दिखेंगे आपको, मतलब comb जो होंगे वो लंबे से, ठीक है. The males are larger than Apis florea, of course Apis florea से ज़्यादा इनका size होता है, and they produce around 2 to 5 kg per year per hive, ठीक है. पर हेक्टेयर होने की आदत पड़ी है यहाँ पे 2 to 5 kg पर हेक्टेयर होने वाली है, बट 2 to 5 kg of honey per year per hive. ऑलराइट. देन वी हैव Apis mellifera, Italian bee, European bee that was brought from other country to India, and इनका भी क्या है, एवरेज यील्ड काफी ज्यादा अच्छा है, 25 kg per hive per year they produce, and they can be reared easily because they are less ferocious as compared to dorsata. ठीक है. Then Apis carinjonian, this was the honey that was found in the western Ghats, नीली हिल्स वाला जो एरिया वहाँ पर ये फाइंड की गई थी. एंड what else is there, अभी like बहुत ज़्यादा known नहीं है उनके बारे में, these new because these are new species that are being reared, ठीक है. Then you have Melicona और Damer bee, these are the stingless bee. Alright. तो honey bee caste पे आ जाता है. honey bee caste we have seen 3 types of. ज़्यादा हनी प्रोडक्शन बोलेंगे तो या मिलीफेरा हो गया या डॉर्साटा. See dorsata भी करता है और Mellifera भी करता है, मतलब it's almost same दोनों का. बस ये है कि dorsata is found in wild and Mellifera you can like बट हम तो हनी प्रोड्यूस की बात करें तो हम तो मेलिफेरा इंडिका से ही कर रहे हैं, क्योंकि डॉर्साटा से मोस्टली मतलब वो मेलिफेरा इंडिका. हाँ हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा. देखो कुछ लोग होते हैं जैसे ट्राइब्स वगैरह होती हैं एंड देयर इज दीस जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है. दोस फॉरेस्ट आर गिवन टू द कम्युनिटीज और द विलेजेस अराउंड. दोस विलेजर्स दे गो इनटू द जंगल्स एंड देन दे फाइंड वहां से. तो ऐसा नहीं है कि जो वाइल्ड से हम हनी कलेक्शन कर रहे हैं वो वहां से भी काफी ज्यादा हनी कलेक्शन होता है, ठीक है. और साथ ही साथ ये रियरिंग तो होती ही है, बट फ्रॉम वाइल्ड आल्सो हनी कलेक्शन इज देयर, ठीक है. सो दैट आल्सो लाइक कंट्रीब्यूट्स टू द हनी प्रोडक्शन इन इंडिया. ऑलराइट. Okay, then honeybee caste पे अगर हम आ जाए, 3 तरह की caste भी है. One is the queen, that is the major one, worker and the drone, right? Every honeybee colony comprises of one single queen. There will be only one queen at a time. More than one queen नहीं हो सकती. अगर एक queen if it has like it's old, so there will be like another queen taking up the charges, ठीक है. So queen is fertile functional female it is, and worker is sterile female, ठीक है. वो उसमें capacity नहीं होती है to produce the eggs, so it becomes sterile. Although it has come from the same kind of egg from which queen has been like arise, ठीक है. And then we have the drone, that is your male insect. Okay, queen is there is only one queen, one individual which lays eggs पूरी कॉलोनी के लिए, और इनका एक ही काम होता है कि रॉयल जेली खाओ और फिर एग ले करो. एंड एग लेइंग भी मतलब इट्स काइंड ऑफ शी इज अ मशीन, ठीक है. मशीन टाइप की है हनी एग प्रोड्यूस करने की. तो इट लेज अराउंड 2000 एग्स पर डे. एक दिन में मतलब जस्ट इमेजिन 2000 एग्स इन वन डे. हाउ मच ऑफ लाइक बहुत सारा उसको फूड कंज्यूम करना पड़ेगा तब जाके 200 एग्स विल बी मेड फ्रॉम वन बॉडी, है ना. So in case of Apis mellifera, you see 2000 eggs being produced by the queen in one day. Also, there is the secretion of the queen substance. Queen substance कहाँ से निकलता है? From the mandibular glands. So we have the different mouth के parts हमने पढ़े थे, axilla, mandibular. तो mandibular glands present होती हैं जहाँ से queen substance निकलता है. And if it is present in sufficient quantity, that will prevent swarming and absconding. Anyone knows what is swarming and what is absconding of colonies? Yeah, swarming multiplication. यस मैम. What is absconding and what is तू तो swarming फिगर. in honeybees? तेरे पास नहीं सुनना. क्वीन के मरने के बाद अगर हाँ. वो स्वामी होता है. Yes. तो स्वामिंग होता है जब बहुत ज्यादा एक ही कॉलोनी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो ये क्या करते हैं अपनी कुछ पॉपुलेशन को क्या करेंगे दूसरी जगह भेज देंगे कि यू मेक अनदर हाइव नाउ, राइट. सो दैट इज कॉल्ड द स्वामिंग. एब्सकॉन्डिंग इज व्हेन दे लीव देयर हाइव, मतलब ऑल ऑफ द हनीबीज पूरी की पूरी कॉलोनी है वो ही सारी भाग जाएगी एक जगह से, ठीक है. सो दैट इज एब्सकॉन्डिंग. तो मैंने कंफ्यूजन से बताया. सही बताया तुमने, ठीक है. Natural instinct of honeybees to reproduce its colonies. Okay, yeah. Swarming few drones workers fly with queen. Desertation of colony. Yeah. ठीक है. So I hope it is clear to everyone now. तो ये प्रिवेंट करने के लिए, ताकि एब्सकॉन्डिंग ना हो, भाग ना जाए सारी जो हनी बीज हैं इधर उधर, पूरी कॉलोनी को साथ में रखने के लिए क्वीन सब्सटेंसेस रिलीज बाय द क्वीन, ठीक है. मैम फिर क्या मतलब एक कॉलोनी में तो एक ही क्वीन भी रहता है, तो जब वो स्वार्मिंग होगा तब तो और एक क्वीन भी आएगा वहाँ पर. हाँ, तब नया क्वीन डेजिग्नेट अ न्यू क्वीन देन दैट क्वीन विल बी secreting this queen substance, because it's very important to secrete the queen substance in order to keep the colony intact. वो एक तरह से कोई फ्रेगनेंस टाइप में होता है कि वो स्मेल से सेंस करते हैं कि हमारी कॉलोनी या कुछ और होता है क्वीन सब्सटेंस होता है जैसे. अब एग्जैक्टली तो मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट क्वीन सब्सटेंस एज फार एज आई कैन लाइक अंडरस्टैंड इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ केमिकल दैट इज बीइंग रिलीज्ड जो कि सारे सेंस कर सकते हैं सब एक साथ सेंस करेंगे तो फिर उसकी वजह से मतलब हो सकता है एक फ्रेग्रेंस टाइप की होती होगी. तो हमारे भी कुछ काम का होता है या फिर होने के काम. नहीं, हम क्या करेंगे क्वीन सब्सटेंस हमारे काम का है ना, इतना सारा हनी तो मिल रहा है, हनी है, वैक्स है, काफी है वो सारा काम का, ठीक है. यस मैम. Okay. Okay, then we have the larva which becomes a queen is fed the royal jelly secretion from the hypopharyngeal glands of the worker bees. So जैसे mandibular एक हमारा एक पार्ट हो गया ना माउथ का, वहीं पर mandibular glands मतलब mandible के पास जो glands होती है mandibular glands are there that secretes what the queen substance. So इसी तरह जो hypopharynx होता है उसी के पास भी एक hypopharyngeal glands there are present of worker bees. ये क्या रिलीज करती है? They release the
रॉयल जेली, दे मेक द रॉयल जेली, ठीक है, रॉयल जेली बनाते हैं, दैट इज फेड टू द क्वीन एवरी डे, ताकि वो एग लेइंग कर पाए, ठीक है। और जो हनी होता है, हनी कैसे बनता है, फर्स्ट इज दिस जो वर्कर्स होते हैं वो नेक्टर अंदर लेते हैं, दे टेक इट इनसाइड, अपने जो क्रॉप पर का पोर्शन होता है बॉडी का, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो क्रॉप वाला पोर्शन होता है वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर दिस हनी इज फॉर्म एंड देन दे रिगर्जिटेट, मतलब बाहर प्रोटीन निकालते हैं, ठीक है। सो या इट्स बेसिकली द वॉमिट ऑफ द हनी बी जो हम खा रहे हैं, ठीक है। ओके, या वेगल डांस विल आल्सो बी देयर, अभी आएगा। ओके, सो दिस इज द क्वीन, ओके। फिर ड्रोन होता है, ड्रोन आई टोल्ड यू एक ही काम होता है, इम्प्रेग्नेट द यंग क्वीन एंड सो एज टू मेक व्हाट यू, वो क्या है, फर्टिलाइज कर देंगे एग्स, फर्टिलाइज करेंगे जब एग्स को तो क्या होगा, नए वर्कर्स बनेंगे, ऑलराइट, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स, राइट। लाइफ स्पैन इनका काफी कम होता है, 57 डेज के, उसके बाद इनको भगा दिया जाता है। देन वी आर द वर्कर बीज, वर्कर बीज सबसे ज्यादा काम की बीज होती हैं, दे आर दी लाइक फीमेल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग एंड देन दे लाइक वर्क थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। नर्सिंग का काम, घर में काम, मतलब घर में जब तक रहती हैं तब तक नर्सिंग का काम होता है, जब बाहर जाते हैं तो फॉरेजिंग का काम होता है, ठीक है। So they have the duties, lots of duties, stages इसमें आप देख सकते हो, पहले egg बनता है, then there is larva, ठीक है, this larva has to be like fed, and then it is that forms a pupa, and finally pupa turns into an adult. कितने days में? 21 days में, ठीक है। So in 21 days egg forms the new adult, alright. So क्या हो रहा है इसमें? Complete metamorphosis की condition है, right? Then bee products, you know, एक honey तो like it's majorly a sweet substance, contains what sucrose, glucose इसमें present होता है। Then we have bees wax, natural wax that is produced by the honeybees, and this wax is used for very cosmetics purpose के लिए use किया जाता है, also for edible purpose के लिए भी इसे use किया जाता है, ठीक है। Propolis is there. Propolis is a sticky resin-like substance that is also produced by the honeybee. Honeybees जो कि tree sap ले, ठीक है, especially the tree saps. So it is used for medicinal purpose. Propolis. Then you have the royal jelly. वैसे तो it is meant for the queen, but human beings also obtain that as well. So it's a milky substance produced by the honeybees to feed the larvae and the queen bee, and it is high in nutrition. So that is also taken up by human beings. ठीक है, pollens भी जो pollens collect करके लेके आते हैं, वो those are like pollens are also a very good source of nutrition. ठीक है. So important terminologies, swarming we have already discussed. Superseded क्या होता है? जब नई queen को बनाया जाता है. So when the old queen is unable to lay sufficient eggs या फिर वो main substance नहीं बना पा रही, so it is like replaced by a superseded queen. ठीक है. Emergency queen, अगर हमारी जो अभी queen बन रही है वो उसकी डेथ हो गई, तो इनके यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन चलता है ना, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कोई भी मिनिस्टर वगैरह की ऑन ड्यूटी अगर डेथ हो जाती है तो उसका चार्ज कोई और ले लेता है। तो यहाँ पर भी क्या है, when queen is dead, जो कि काम कर रही थी, तो उसके प्लेस पे क्या है, किसी एक वर्कर को क्वीन बना देते हैं for temporary basis, ठीक है। So in event of death of the queen, in a worker cell are selected and the cell extended into a queen cell. कोई भी worker को select कर सकते हैं. This fed with abundant royal jelly and converted into a queen. First queen which comes out of the emergency queen cells kills the other stages of the queen inside the cells and then go for mating. ठीक है. तो competition इनके केस में भी हुआ था कि हम बनेंगे तो फिर औरों को फिर मार देंगे, ठीक है. ऐसे ही होता है हर जगह. Then coming to your communication in bees, तो bees में communication कैसे किया जाता है? Usually डांस परफॉर्म करके, ठीक है. एंड दो तरह के इसमें डांस होते हैं. One is a round dance and the other one is your wiggle dance. So round dance गोल गोल कब घूमती है bees? When the food is nearby. So if the food is nearby, less than 50 meter में अगर food available है, so what will they be doing? Round dance, ठीक है. Whereas दूसरा होता है wagtail dance और waggle dance, ये कब करते हैं? When the food is more than 50 meter away, तब it will perform what? Waggle dance, right? Okay, then coming to your hive colony comb, this is like something you already know. Absconding we have already discussed. Nuptial, I told you कि drones क्या जाते हैं? Nuptial flight पे जाते हैं. Nuptial flight or the marriage flight when they'll like go for mating purpose, ठीक है. Then bee box structure, this you can read on your own because bee box structure से कभी question आता नहीं. For your knowledge, you can like study this, you can go through this. We'll come on to the pest and diseases of bees because this is important. Questions are asked from this portion. Okay. So pest and diseases of bees, if we see, one is a major insect pest that we have is wax moth. That is Galeria melonella. ठीक है. और करता क्या है? नाम ही Galeria, तो it forms what? गली गली बनाता है. It makes gullies inside the bee comb. तो here you can see, ये पूरा bee comb है, बीच पे इसलिए बना दिया अपने tunnels बना दिए हैं. So that what does, मतलब ये क्या करता है? tunnels बना करके जो bees ने honey बना रखा है उसको खुद खा लेता है और साथ ही साथ पूरा खराब भी कर देता है. तो बोल सकते हो एक तरह का इंसेक्ट पेस्ट, ठीक. So it feeds on the propolis, pollens in the wax and the comb and they create the silken tunnels. Here you can see they forms a tunnel leaving behind the debris webbing and which weakens the colony. तो पूरा जो इनका घर है उसी को क्या कर रहा है, ये खराब कर देगा, ठीक है. Okay, so these are the wax moths. Then we have the ants. Ants, so I don't need to tell you what are ants, ठीक है. So ants are there. They also attack the bee colonies and steal the honey. Ants तो you know हमारे घर से ही खाना ले जा लेते हैं, तो honey तो फिर इतना sweet है वो तो ले जाएंगी वो, ठीक है. So wherever they see कि यहाँ पर honey कम है तो they go there and they steal the honey so that they can feed their own children. है ना. So this is what they do. Ants are there. Then we have predator wasp. Wasp को भी हनी चाहिए, वो भी क्या करता है? खाने के लिए आ जाता है, ठीक है. So wasp में बहुत सारे आपकी जीनस और बहुत सारी स्पीशीज हैं. You can see क्या what do they do is they capture the bees at hive entrance for feeding their young ones, ठीक है. तो ये क्या करते हैं? bees पे ही अटैक कर देते हैं. Then we have the wax beetle. Wax beetles are there feeding on the debris on the old combs in the weak colonies. तो ये भी क्या करते हैं? comb पे अटैक करते हैं. Alright, and then we have the birds. तो birds का तो बहुत अच्छा है because वो क्या है? एक बीक मारेंगे फिर उड़ के चले जाएंगे. So सबसे अच्छा तो नहीं ठीक. So here you can see the crow and the bee cavers are there who come to the like this hive. वहाँ से थोड़ा सा बीक मारी और वहाँ से क्या कर दिया?
एक बड़ा सा पीस लेके गए उनके हाइव का, इन विच देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हनी प्रेजेंट देयर, ठीक है, उसको खा ले जाते हैं। तो एक तरह से हाइव को ब्रेक कर रहे हैं, खुद तो खा रहे हैं लेकिन उनका तो हाइव ब्रेक हो रहा है ना। देन देयर आर माइट्स एज वेल। सो अच्छा, माइट्स कौन से ऑर्डर में आते हैं? Arachnidae. In which order do we have the mites? Arachnida. Yes, that is Arachnida. ठीक है। Okay, so we have एक तो mites उस पे भी अटैक करते हैं, जितने हमारे प्लांट्स पे तो अटैक करते हैं, इन पे भी अटैक करते हैं। So there are tracheal mites, ठीक है, they feed on the hemolymph by piercing the tracheal wall. So जो honeys जो bees हैं, bees की बॉडी पे अटैक करते हैं, because mites are microscopic, very small in size. So इतने बड़े तो है नहीं कि जाकर के सीधे हनी मतलब बीज को मार दें या फिर इनके हाइव पे अटैक करें, नहीं, ये क्या करते हैं, हनी बी की बॉडी पे अटैक करते हैं, ठीक है। सो देयर आर parasitic mites also present there and endoparasitic भी होते हैं। and what will they do is they'll इनको एक तरह से जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे worms चले जाते हैं ना, and then they may lead to the death, इसी तरह से हनी बी में भी ये mites चले जाते हैं बॉडी के अंदर and then they may lead to death, ठीक। then other than that we have bee louse, जैसे हमारे सर पे जुए होते हैं, इनके भी बॉडी में जुए होते हैं, तो those are called as a bee louse, ठीक है। these are wingless flies that sit near the thorax of the bee and feeds on the food material that coming to near the opening of the salivary glands of the mouth, तो माउथ के पास ही जाकर के ये बैठ जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम याद रखना है, इफ यू कैन रिमेंबर तो अच्छी बात है, वरना आई नेवर रिकमेंड यू टू लाइक लर्न द साइंटिफिक नेम्स, बस एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, जस्ट इन केस अगर आ गया एग्जामिनेशन में तो इट मे गो इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी। तो वो होता है ना, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं, तो एक ऑप्शन आपको लगता है कि वो कभी तो पढ़ा था, ये कहीं तो पढ़ा था, तो वहाँ से मार्क कर सकते हो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू टू लाइक क्रैम ऑल द साइंटिफिक नेम्स, ठीक। Then diseases, if we see, so there are diseases as well. Nosema disease, one of the most important diseases there, caused due to Nosema apis, ठीक है, it's basically a protozoan disease है, ठीक है, that leads to dysentery and weak and fright during the cold weather। तो डिसेंट्री हो जाएगी हनी बीज को अगर डिजीज लग गया, ये अगर ये प्रोटोजोआ की बॉडी में चलेगा। देन वी हैव यूरोपियन फाउल ब्रूड। फाउल ब्रूड क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज फाउल स्मेल आती है इसमें। सो इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस प्लूटोन दैट अफेक्ट्स द लार्वा लीडिंग टू फाउल ऑर्डर। बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, दैट्स व्हाई इट इज यूरोपियन फाउल ब्रूड। एंड अनदर वन इज द अमेरिकन फाउल ब्रूड, तो इसमें स्मेल थोड़ी अलग टाइप की आती है, आती तो इसमें भी स्मेल नहीं है, इसमें फिशी ऑर्डर इज देयर, ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द बैसिलस। Then you have the sac root disease or thigh sac root disease. It is caused by the virus. So ये दोनों जो आपके disease थे, these were caused by the bacteria, whereas जो sac root disease है, that is caused due to the virus. Then we have the chalk root and stone root, that is a fungal disease. So ये थे important diseases that whatever is important about the apiculture or the honeybees. This you need to revise, go through whatever has been provided in your syllabus, and then do the chapter test and